हम लोग को 3 लाख का लालच दिया गया है। 3 लाख हमको दे गए, रूम खाली कर लो। सर, ये किसके कहने पे 3 लाख रुपए की बात हुई थी? ये बेसिकली हब टाउन की तरफ से आया है कि आशीष शेलार जो हमारे एमएलए है उन्होंने ये बताया हुआ है कि आशीष शेलार के थ्रू ये अमाउंट डिसाइड आशीष शेलार के थ्रू हुआ है। We have accepted the developer and all that. So Hubtown has never had any meeting with us. We don't know who is Hubtown. They come, I am Chennai, I am from Hubtown, I am, what is the next name he said? Rohit, Akruti, and then there's Pompi Thakur. He says I am from Thakur Construction. विठल बहन मेरे को फोन करता है चेयरमैन, तुम सेलिन साइन कर। मैं बोले बाद में देखता है, मेरा बेटा घर में है, मैं बेटा को पूछ के मैं साइन करूंगी। लोगों को डरा के धमका के उन्होंने सब कुछ किया हुआ है यहाँ पर, और फिर कहते हैं पता है हम डराते हैं तुम्हें, हम धमकाते हैं तुम्हें, तुम अपने मर्जी से आके साइन करो ना। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और क्या नोटिस आया है उसके बारे में ब्रीफिंग करें। जी हम माय नेम इज फ्रांसिस फर्नांडिस। आई स्टे इन द सेम कॉलोनी। मेरा नाम है रूम नंबर 3 and 4 मेरा है। सो आई रिसाइड हियर एंड फॉर द पास्ट 50 years the structures have been there and the society colony has been existing for a very long time. So here what has happened, the developer and the society has got into a very big scam and made fraud over everything. So what we are here to prove is that to explain to everybody that this is wrong, what is right. So we are not getting our rights, that's why we are started with it. In 96 the developer came inside and he said that we are going to build in this 911, we will build your thing, and Thakur Construction had taken up this place and started this work, and Uptown came inside in between, and then after that, from that day onwards till now we are always being harassed. And the actual fact that they said that we will develop a place here only and give you the new flat here only. तो हमारे एग्रीमेंट पे जो है हमारे पास अभी भी वही लिखा है कि we will not empty you from this property, we will make house here only and give you here only. उसके बाद में कुछ भी नहीं है अभी। they are exploiting our survey number and put it into some other place down, and they are amalgamating other societies where is 908, 909 and we are 911. So 911 is getting nothing and हमारा पूरा वहाँ पर उन लोगों ने यूटिलाइज कर दिया, and whatever they had utilized, and now they say that you are not eligible and you all should leave from here and आपको हम लोग दे देंगे। फिर नोटिस बोर्ड डाल देते हैं, बोले 3 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन, ऐसे करके हमारी यूनिटी तोड़ के हमारे से झगड़ा करके हमारे से थ्रेटन करके ऑल दिस थिंग। एंड इन दिस देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर लोकल बॉडीज, पॉलिटिशियंस and everybody. Nobody supports us because we are minority, we are poor people, they always say, but they don't know that we are educated people and we are qualified people, we can stand and face this matter properly with them. So they are taking us as absolutely nil. No people, you all are nothing in this place. We have got all the amenities, we have got toilet, bathroom, water, light, everything we have got. We have got all the proofs of all these things, but they still say you all are nothing. Society, secretary, chairman, the full entire body, for 30 years they have stayed in one place and not moving. But even also we have given them letters saying that please vacate from this premises, get out from this. You have given elections, for 30 years no election, nothing. And now at this very moment they are always instigating SRA and SRA and SRA. SRA के खंदे पे डाल के पूरा यहाँ पर बंगला बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, सब कुछ बना। There are a lot of big huge buildings come up here. So ultimately they are using SRA, and I am sure, I think certain fact of this property and this land they themselves doesn't know. But this land 911 still belongs to government. The property card is still existing, and we are leasehold property here, only one. We are governed by the Maharashtra Cooperative Housing Society Act Limited. We have our registration numbers, and in this they don't value us. ऐसी जानकारी है कि बिल्डर पॉलिटिकल का सहारा लेकर इस बिल्डिंग जी बहुत सहारा ले रहे हैं डेवलपमेंट उसका ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या तो सब पॉलिटिशियंस अराउंड हमारे जो लोकेशन के, हमारे जो वार्ड के जो भी है पॉलिटिशियंस है, ऑल आर सेइंग दिस इज देयर ड्रीम प्रोजेक्ट एंड दे वांट टू डू इट वगैरह वगैरह वगैरह। सो दे आर टोटली सपोर्टिंग दिस पीपल। सो विद देयर सपोर्ट ओनली दिस थिंग इज हैपनिंग। 30 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सेक्रेटरी और चेयरमैन उनके साथ में टोटली मिला हुआ है। 30 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं और आपके घर को अपात्र बताया जा रहा है, रीजन नहीं बताया गया। रीजन नहीं बताया गया, हाथ से उन लोग जो एनेक्सर है उसके ऊपर हाथ से लिखा जाए अनएलिजिबल। और अभी जो एग्रीमेंट्स दे रहे हैं उन लोग, दे आर री एग्रीइंग, पुटिंग री एग्रीमेंट, ये करके कि भाई री एग्रीमेंट जो होएगा उसके अंदर
क्या बोलते हैं, तो यूनिटी दिखा रहे कि वी आर मेजॉरिटी आर दे कैन दैट स्कीम। अभी जो 96 में था LOI एनहेंस करते 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 दे हैव कम टू दिस पर्टिकुलर स्टेज एंड सिंग वी हैव ऑलरेडी गॉट LOI। सो SRA उसको देने में क्या है, वो तो देते जाएंगे। बट द फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट नाउ दे आर इम्प्लीकेटिंग द स्कीम बाय टेकिंग एग्रीमेंट फ्रॉम आवर 98 हाउसेज। वो एग्रीमेंट अभी आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? We want a decent home and a decent clarification from them. अगर हमको अगर जगह पे चाहिए अपन दे गिव अस अ डिसेंट होम वी विल एक्सेप्ट इट। हमारा जनरल बॉडी रेजोल्यूशन जो है, प्लीज ब्रिंग ऑल दैट ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड से कि भाई हमने वी हैव एक्सेप्टेड the developer and all that. So Uptown has never had any meeting with us. We don't know who is Uptown. They come, I am Chennai, I am from Uptown, I am, what is the next name he said? Rohit, Akruti, and then there's Pompi Thakur. He says, I am from Thakur Construction. You are from anywhere, but we don't recognize you. We need We need paperwork, we need proper... बिल्डर के अगेंस्ट में कहाँ तक आप शिकायत करेंगे? हालांकि लीगल रास्ता भी आपने अपनाया है, तो क्या इसके बारे में क्या बताएंगे? लीगल रास्ता तो हमारा प्रोसीडिंग चल रहा है, बट आई ओनली से प्रे टू द थिंग दैट they should not just take the law in hand. If they take law in hand, I think they should have the proper punishment over it, and this punishment should definitely be granted by the government towards us, because we are proper governors of the government. सिविल कोर्ट में केस भी चल रहा है क्या? सिविल कोर्ट में चल रहा है, एपेक्स ग्रीवेंसी में चल रहा है। वी हैव अभी 30 डेज का जो नोटिस है, वी हैव आल्सो चैलेंज दैट 10 डेज का है, उसको वी हैव चैलेंज दैट आल्सो। बिल्डर का रिकॉर्ड बहुत खराब है मीडिया में। या सर, ये हपटाउन और ठाकुर कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है आप लोगों को मतलब कुछ धमकी भी दी गई? हाँ, धमकी तो ऐसे आते रहते हैं। आप लोग साइन नहीं करेंगे तो कल बुलडोजर आ जाएगा, 10 तारीख को बुलडोजर आएगा, डराया जा रहा है। ये दिवाली हो जाएगा। तो ऐसा बिल्डर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? जो ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। ब्लैकलिस्ट होना ही चाहिए। दे आर ऑलरेडी ऑन टू ब्लैकलिस्ट। दे हैव अ सुप्रीम कोर्ट में उन लोग के फाइनेंशियली साउंड MIDC इधर उधर, दे हैव ऑल द प्रॉपर्टीज गोइंग ऑन देयर। लोकल पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है आपको? लोकल पुलिस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सर, हमें पता चला है कि आशीष शेलार का भी इसमें कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट है बिल्डर के थ्रू। अभी है इन्वॉल्वमेंट है, तो सब लोग बोल रहे हैं। आशीष शेलार का क्या है इसमें? सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। चेयरमैन और कमेटी मेंबर, सेक्रेटरी। मेरा नाम सलीम डीसा है। मैं 50 साल हो गया मेरे को एक शादी करके मेरा, और मैं सीनियर सिटीजन भी है, और मेरा आदमी गुजर के 3 साल हो गया। मैं अकेले मेरा बच्चा, छोटा बेटा का बच्चा लोग को लेके घर में रहती, और मेरे को फ़ोन करता है, फ़ोन करके बोलता है साइन करो आंटी, साइन करो। मैं साइन करके कौन फोन करता है, उसका नाम बताइए। विठल बर्न मेरे को फ़ोन करता है, चेयरमैन, एंड तू सलीम साइन कर। मैं बोले बाद में देखता है, मेरा बेटा घर में नहीं है, मैं बेटा को पूछ के मैं साइन करूँगी। मतलब कहीं ना कहीं चेयरमैन मिला हुआ है बिल्डर से? मिला होगा, वो मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं घर में रहती, बच्चा लोग को 3 बच्चा लोग है, मेरा बेटा का बच्चा लोग को देखती मैं, कुछ काम नहीं करते, हाउस वाइफ है। प्लीज हम लोग को कुछ भी मदद कुछ करो। लालच भी दिया है क्या? नहीं, मैं बोले मेरे को लालच बिलच कुछ नहीं चाहिए। खाली मेरे को बोलते हैं आके बात कमें, बोले मेरा घर बड़ा है तो मेरे को इतना ही छोटा से घर कैसा पूरा पड़ेगा। ऊपर नीचे, ऊपर का छोड़ दो, नीचे ही मेरा बहुत बड़ा घर है, आप लोग भी देख सकते हैं। थैंक यू। इस नोटिस के बिहेव में आपने लोकल कॉन्स्टिट्यूशन जो MLAs हैं उनसे मुलाकात की थी, तो क्या रिस्पांस मिला, वहाँ से क्या जवाब मिला? इसी बेसिकली जो भी है, हमारे जो कमेटी में मीटिंग हुआ था जिसके अंदर हम लोगों को क्या बताया गया था कि जो लोकल यहाँ के MLA है, ओके, जो लोकल MLA इन्वॉल्व है इसके अंदर, और उन लोग के एंड से प्रोजेक्ट आ रहा है जिसको लोग ड्रीम प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, और बाकी का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, लोग ने हम लोगों को कुछ दिखाया नहीं। ओके, जो भी कुछ है खाली वर्बली मीटिंग में कुछ और बताया जा रहा है, हम लोग को पेपर पे कुछ और दिया जा रहा है, ऐसे करके हम लोग को पूरा है ना, पूरा मैनिपुलेट कर रहे हैं। हर एक 10 जन को पकड़ते, और फॉर एन एग्जांपल अगर ये नोटिस 98 लोगों का रूम है तो एक साथ सब लोग को नोटिस नहीं आ रहा है। पहला 15 जन को नोटिस भेजेगा, फिर उन लोग को डराएगा, उन लोग को धमकाएगा कि अरे भाई तुम लोग खाली कब कर रहे, ओके, और उसके बाद वो 15 जन का मैटर सॉल्व हुआ, फिर नेक्स्ट 15 जन को वो लोग नोटिस भेजेंगे। इस प्रकार से वो लोग यूनिटी भी तोड़ रहे हैं और अपना काम भी करवा के ले रहे हैं। 10 लाख रुपया दे रहे हैं लोगों को। हाँ, और किसी को 3 लाख, हम लोग को 3 लाख का लालच दिया गया है, 3 लाख तुमको दे गए, रूम खाली कर लो। सर, ये किसके कहने पे 3 लाख रुपए की बात हुई थी? ये बेसिकली हपटाउन के तरफ से आया है कि आशीष शेलार जो हमारे MLA है उन्होंने ये बताया हुआ है
कि आशीष शेलार के थ्रू ये अमाउंट डिसाइड आशीष शेलार के थ्रू हुआ है। आशीष शेलार कौन होते हैं इस तरह का अमाउंट डिसाइड करने के लिए? अभी आशीष शेलार बिल्डर और आशीष शेलार और बिल्डर के बीच में होगा, अपने को तो आप कोई मुख्यमंत्री क्लैरिटी से नहीं है। और उप मुख्यमंत्री से देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी से क्या मांग करना चाहेंगे? सी हम लोग को बेसिकली चाहिए दैट इज़ राइटफुल पेपर्स, जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे हमें दिखाई है, जो भी आप लोग ने डिस्कस किया है, जो मीटिंग आप लोग ने रखी है, वो एक प्रॉपर हम लोग को दीजिए। पूरा जो भी कुछ है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोग के पास, वो हमें दिखाइए। डॉक्यूमेंट जो हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग ने SRA में भी हम लोग ने मांगा है वो केस, मतलब जो केस किया था उसमें वहाँ पे भी पेपर सबमिट नहीं किया गया है। और जितना भी हम लोग का और भी कहाँ पे केस चल रहा है, डिंडोशी में भी हम लोग का केस चल रहा है। अभी 16 को उसका हियरिंग है, जून 16 खत्म हो गया, हियरिंग खत्म नहीं हुआ और तुरंत बिल्डर की तरफ से वापस से 10 दिन का नोटिस आ गया है हम लोग को। मतलब ये बिल्डर जो है वो कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, कोर्ट को नहीं मानते हैं। उनकी मम्मी खड़ी है यहाँ पर। हाँ, उस बोलिए। लड़के को जबरदस्ती करते हैं कि उसने श्योरिटी दी है उसको, ठीक है, तुम घर खाली साइन नहीं करोगे तो फिर तुम्हें श्योरिटी तुम्हारी कैंसिल फाड़ के फेंक देंगे, तुम्हें घर नहीं कौन मिलेगा। बोला उसको इस तरह घर की नहीं बात? कौन बोला है जो फाड़ के फेंक देंगे? जो कहते हैं यहाँ नहीं पर, कहते हैं तो जो उनका नाम चेयरमैन है। बताइए ना, चैनल के माध्यम ठीक से है, लोगों तक चेयरमैन जाना जिसने- चाहिए। जिसने भी कहा है चेयरमैन ने, क्योंकि इनको पता है। देखो ये देखो, बंदा है, ये बंदा है, वो मम्मी है उसकी। अच्छा, इकड़े देखो ये बंदा है, ये बंदा है, इसको फाड़ ठीक के है, फेंका। इसका ये नाम बात क्या हो नाम गई है? चेयरमैन के साथ और मेरे। ठीक है, हाँ, हाँ। इन्होंने बात करना चाहिए, मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये ठीक है। मुझे चेयरमैन ने क्या क्या लालच दिया आपको और क्या धमकी दी? वो किस कहते प्रकार हैं- से? उसने ऐसा बात किया था मेरे से, मैं तुम्हारा जो पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल कर सकता हूँ, अगर तू नहीं रहेगा तो फिर तेरे मम्मी को कोर्ट में जाके तेरा पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल करके तेरा मम्मी का साइन ले सकता है, ऐसा बोला चेयरमैन किस तरह का पावर बटन दिया गया था उनको? कि मैंने पावर ऑफ अटर्नी मम्मी से लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी को अभी कुछ लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, तो पूरा घर का पूरा जिम्मेदारी और मेरे ऊपर है, तो ऐसा पावर ऑफ अटर्नी मैंने लिया था कि जो भी पेपर वर्क रहेगा उसके ऊपर साइन मैं करूँगा। ये मम्मी है उनकी, तो इनको धमकाया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत सीनियर सिटीजन को धमकाया गया हुआ है यहाँ से, क्या तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चढ़ाएंगे, जो तुम्हारी मेहनत की कमाई भी है ना, हाँ, वो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि हम इतने सालों से जी रहे हैं यहाँ पर। मतलब खुल्लम खुल्ला जो है आप लोगों को मतलब धमकी दी जा रही धमकी दी जा रही है और जैसे जैसे आपको एक मोटी सी बात बताती हूँ, ये अकेला मिला ना, इसको धमकाया, ठीक है, वो डर के मारे क्या बोलेगा, अरे यार मेरी फैमिली है, कल बुलडोजर चढ़ेगा तो पूरा मेरा मतलब जो भी है खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो डर के उसने साइन किया और सामने से पता है क्या कहते हैं कि बोलते हम किसी को धमकाते नहीं है, जो भी आते हैं अपने मर्जी से साइन करके चले जाते हैं, मगर ये गलत है। जो भी किया उन्होंने, मेरा बचपना गया यहाँ पर, ठीक है, मैंने आज तक उफ नहीं किया यहाँ पर, मगर आज मैं डर के जी रही हूँ। किस वजह से? क्योंकि ये लोग जो आए हैं, इन्होंने हमसे पूछा, जब हमें बेचने के लिए बिल्डर के हाथों में कभी नहीं पूछा, तो मतलब हमें तकलीफ नहीं होती है, हम जड़ है इस जगह की, मगर 30 साल से जो राज कर रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको 5-5, 6-6 फ्लैट मिल सकते हैं, मतलब हम सड़क पे रहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात है ना, ताज्जुब की बात है यार। और ऊपर से पता है क्या कहते हैं, आते जाते कुत्ते भौंक रहे, भौंकने दो। मतलब खाया तुम लोगों ने, डाइजेस्ट किया तुम लोगों ने, मतलब हम कुत्ते बन गए। जो जगह का मेन ऑनर है उसको कुत्ते बता रहे हैं। हाँ, और मतलब ये क्या बोलते हैं, किसी को भी पकड़ते हैं ना, अभी जो हम लोग के ग्रुप के हैं उनको यही कहते हैं कि मतलब तुम खाली करो, नहीं तो बुलडोजर आएगा, सब खत्म हो जाएगा। इस तरह का धमकी देते हैं हम आपको? लोगों को नोटिस अभी आया हुआ है, केस हम लोगों की कोर्ट में है, उसके बावजूद भी हमें धमका रहे हैं। ये नोटिस है, ये मेरा पिताजी है, ये ऑफ हो गए, इसके नाम पे नोटिस है। मरे हुए लोगों के नाम पे नोटिस भेज रहे हैं। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, 16 जून का नोटिस ये केस है, उसके पहले इन लोग ने ये नोटिस भेजा हमको, लेकिन पिताजी ऑफ हो गया, अभी कोई इसलिए भेजने का, डेड पीपल के नाम पे उसके ऊपर भेजना पड़ेगा, ऐसा लोगों को समझना चाहिए ना।
किसको भेज रहा है? अच्छा, ये आपके पिताजी की डेथ हो गई, उनके नाम पे नोटिस भेजा गया। हाँ, भेजा। ये नोटिस, ये आपके पिताजी की डेथ कभी हुई सर? 2014 में। और ये नोटिस अभी आ रही है? आप भी आए। ये उन्हें पता नहीं है कि आपके पिताजी की डेथ हो गई? सब मालूम है। ये मतलब एक साजिश रची जा रही है, साजिश रची जा रही है। मैंने गिफ्ट डोनेशन किया है मेरा मम्मी का, उसमें डेथ सर्टिफिकेट दिया है, पर पहला भी डेथ सर्टिफिकेट दिया है, पिताजी ऑफ हो गया जब भी, उसका जब भी दिया था। बाद हम लोग भाई का मैटर भी चालू था, जब भी हम लोग का ये चालू था, इयरिंग चालू था, जब भी इयरिंग में ये लोग आ रहे थे एसआर के अंदर, अपने इयरिंग चालू था अपना दादर में। जब भी सोसाइटी एक बार आया, उसके बाद आए ही नहीं, उधर एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? सोसाइटी है ना, तो सोसाइटी आना चाहिए। अभी ये डिमोलिशन कर रहा है, ये डिमोलिशन क्यों कर रहा है? डिमोलिशन करता है तो बीएमसी आना चाहिए, उठाने भी बीएमसी आना चाहिए। ये बंगार वालों को लाते हैं, तोड़ फोड़ करके जाते हैं, और जिसका तोड़ना है उसको बोला बंगार भेजो, 25,000 इसका आ जाएगा, तो 25,000 के लिए बंगार के लिए खड़ा थे। कल अगर तोड़ा और कल फ्लैट नहीं मिला तो ये लोग क्या बोले, यार तुम लोग तोड़ के गए, हमने तो तोड़ा नहीं, बीएमसी ने तोड़ा नहीं, तुम खड़ा करके तोड़ा, तुम बंगार भेजा। अब चुतिया तो इतना बना रहे, पब्लिक को पूछो मत। हाँ, बहुत चुतिया बना रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को फंसाया जा रहा है यहाँ पर। 96 से एग्रीमेंट लेके घूम रहे हैं इन लोग अभी तक। हाँ, ओके, 1 मिनट। अभी ये जो डेड पर्सन के ऊपर जो नोटिस भेजा है, हम 96 में जब हमने ठाकुर कंस्ट्रक्शन से हम लोग ने साइन किया था, एंड देवर अलॉन्ग विद हपटाउन, साथ में ही थे हम लोग, पहले से साथ में ही जा रहे हैं, बट वी नेवर न्यू हपटाउन कमिंग इन फ्रंट। अभी हपटाउन फ्रंट आ रहा है। सो दिस पोजीशन इज दैट कि इन लोग ने हमारे जो 98 लोगों में से सबको जो एग्रीमेंट बना के दिया था, उसमें से 85% लोग मर गए, 85 डेड। उसी 85 लोगों के ऊपर अभी भी नोटिस जारी कर रहे हैं कि काइंडली विकेट दिस प्रेमाइसेस, इट हैज़ बीन डेंजर, इट हैज़ बीन दिस, ये वो सब वगैरह वगैरह वगैरह। सो दे आर यूजिंग ऑल दैट थिंग। और अभी जो 98 के एलओ है अभी तक चलाते जा रहे हैं। और हमें अभी डिंडोशी कोर्ट पे जब हमारी हियरिंग हुई थी नोटिस ऑफ मोशन पे, तो वहाँ पर हमारे को डिक्लेयर किया गया था कि वी हैव मेड एन एग्रीमेंट इन 96, comply by the same agreement of 96, give us the same places, give 96 में निकाला कि we will give you here only, यही प्लॉट में 911 में, तो ये give us in 911, we are accepting 911, but तुम्हारी क्लैरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, स्कीम सब कुछ दिखाओ। आवर जनरल बॉडी रेजोल्यूशन जो हम लोग, अगर आपको आपके हाथ में हमने पूरा प्रोजेक्ट दे दिया तो यू हैव टू शो। ये एक भी कुछ नहीं दिखा रहे। एवरी डॉक्यूमेंट हैज बीन हिडन अप, एवरी डॉक्यूमेंट। या द फर्स्ट एग्रीमेंट दे हैव मेंशन दैट देयर ये सब कुछ होने वाला है यहाँ पर। तो ना भी बोल रहा है कि वी विल गिव यू ऑल डाउन, वी विल गिव यू ऑल देयर। अभी जो भी देता है तो वो भी तो दिखाओ ना, वो भी नहीं दिखा रहे। So we will at least be satisfied. सब चुप चुप के हो रहे हैं, everything is behind the screen. अभी ये प्लॉट बोलते हैं we will do soil testing है, पूरी प्लॉट खाली कर दो, we will do soil testing. Soil testing होता ही नहीं ऐसी प्रॉपर्टी पे, it has to be done in small. अभी जब प्रोजेक्ट इतनी बड़ी बनाए तो उस टाइम पे जरूर सॉइल टेस्टिंग किया तुमने। सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी भी SRA में लगा हुआ है, सिटी गोल्ड आर्किटेक्ट है ये वो इंजीनियर वगैरह का, तो उसके ऊपर तुमने सॉइल टेस्टिंग किया हुआ है। सो सॉइल टेस्टिंग इज अप्रूव्ड बाय दिस SRA टू मेक बिल्डिंग। वो नीचे के स्कीम में, नीचे के प्लॉट में, हमारे प्लॉट में भी तुमने किया होगा तो ठीक है, फाइन, इट्स ओके। बट नाउ वेयर यू गोइंग टू डू सॉइल टेस्टिंग, यू आर नॉट डूइंग सॉइल टेस्टिंग। ये प्लॉट पूरा खाली करके हम लोग कल रोड पे जाएंगे और बाद में बोले तुम्हारे को 2 साल भाड़ा दिया, उसी के अंदर हमने तुमको खरीद लिया, वी हैव परचेस्ड यू बिकॉज देयर इज अ थर्ड पार्टी हु इज पेइंग the dues now. There's another company which has come inside who are giving check. Finance. What is the check? Finance है? अवराधना इंफ्रास्ट्रक्चर। अवराधना इंफ्रास्ट्रक्चर का चेक दिया जा रहा है सबको। एग्रीमेंट हपटाउन बना रहा है एंड अभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हुज अवराधना इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक को नहीं मालूम है किसके नाम से आ रहा है चेक। टुमारो अवराधना इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम एंड ये बोलेगा कि भाई अभी ये जो प्रॉपर्टी है हमने आपके 10 लाख रुपये में खरीद लिया, 9 लाख रुपये में, यू कम। और वो सीधा बोल भी देते हैं कि मेरे से पैसा मत मांगने, गो टू योर बिल्डर हु इज वन सोसाइटी, तुम्हारी सोसाइटी से मांग लो। एक ऐसे लोकली इन लोग सब मिले थे, बोले हम लोग आपको समझा देंगे, आपको करेंगे, सब लोग बैठ गए थे। तो उस टाइम पे बोलते हैं बिल्डर क्या बोलते हैं, हमारे से मत मांगना, आपकी सोसाइटी सेक्रेटरी चेयरमैन है ना, उनसे जब मांग लेना, उन्होंने हमको ये प्लॉट बेचा है, यू हैव नॉट गिवन मी। वो खुला वहाँ बोलते रहते हैं। मेरा नाम एवलिना, मिस एवलिना रुबेलो है और मेरी उम्र है 56। तो 56 से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो हम लोग का मीटिंग इन लोग के साथ था, पंपिन ठाकुर और दूसरा रोहित जिने के साथ हम लोग का रंग शारदा में मीटिंग था। तो वहाँ पे लोग ने बताया कि हम लोग ने पहले बोला कि हम लोग को प्रोजेक्ट बताना, LOA GBR सब हम लोग को पे बताना, तब हम साइन करेंगे।
तो हमको भी इधर लेना नहीं चाहिए, हम लोग को भी बिल्डिंग चाहिए लेकिन यहाँ पे ही चाहिए। तो वो बोला कि हाँ हम लोग देंगे, आप आके ऑफिस में मिलने को। तो मैं और मेरी सहेली मिसेस राइना और एक ईश्वरी, हम लोग तीनों जन गए। तो हम लोग को मैंने बोला बताओ ना, बोलते ना अभी इधर नहीं, हम नहीं दे सकते आपको। मैंने क्यों, अगर क्लीन है सब सच है तो दे, बता ना, हम लोग साइन करके जाएंगे। बोलते इसमें झूठ और क्लीन और अनक्लीन कुछ नहीं, हम नहीं दे सकते। तो बोलते तुम्हारा कोई लॉयर है उसको लेके आओ, हम बताएंगे। लेकिन जब लॉयर को बताते तो उन लोग के पास कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला तुम लोग को सॉइल टेस्टिंग करने के लिए, इसके लिए हम लोग को खाली करना पड़ेगा। मैंने इतना से जगह पे तो सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं। बोलते नहीं, बाद में क्या बोल रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग। अभी मुझे 56 ईयर्स हो गया, अभी तक मैंने कभी लैंड स्लाइडिंग देखा है नहीं, क्योंकि पूरा रॉक की है। तभी हम लोग खाली करके जाएंगे तो उसको बोलते हैं इधर हम लोग सेफ फ्लैट नहीं आएगा। तो फिर वो इतना क्यों घाई करते हैं हम लोग को खाली करने का। बस इतना, हम लोग को फ्लैट चाहिए तो यहाँ पे ही चाहिए, ये 911 में, और यहीं पे चाहिए, और किधर भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग इतना साल से यहाँ पे रह रहे, क्योंकि नहीं लोग का खुद का नहीं है, ये 7 मेंबर लोग का सोसाइटी नहीं है, लोग का कॉलोनी लोग का नहीं, हम लोग का सबका है, हम लोग का हक बनते हैं। हाँ, सबका हम लोग का हक बनते है क्या नहीं। तो ये लोग को किसने राइट दिया कि बिल्डर को भेजने का। तो कुछ पूछेंगे तो दादागिरी करते, बुलडोजर लाएंगे, हम लोग डर के रहना मांगता हम लोग का जगह पे ही। तुम लोग पैसा कमाएंगे, मेंबर लोग ने को भी अच्छा मिला है, हम लोग को क्या मिलेगा वो तबेला में। बस इतना ही मुझे, हम लोग को जस्टिस पे मांगते हैं और हम लोग को फ्लैट यहाँ पे ही चाहिए बस, और किधर भी नहीं। 911 में हाँ विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हम लोग को सब मांगते हैं, प्रोजेक्ट भी मांगते हैं देखने के लिए कैसा बिल्डिंग बनेगा, वो सब मांगते हैं। देखे बाद में हम लोग साइन करेंगे। पहले उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, ठीक है, जो पहले ठाकुर कंस्ट्रक्शन से हमारा साइन हुआ था ना, उन्होंने यही कहा था, उस पर लिखा हुआ भी है, बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमें यहीं पर मिलेगा। तो तुम एग्रीमेंट किस तरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। और रही बात यहाँ मिलने का, तुम हमें लेके जाके के कबाड़ खाने में फेंकोगे, हमारा वैल्यू क्या है। तो इसका भी सोचना पड़ता है ना, मगर कोई ये नहीं सोचता है। और ऊपर से धमकियां आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लोगों को डरा के धमका के उन्होंने सब कुछ किया हुआ है यहाँ पर। और फिर कहते हैं पता है, हम डराते हैं तुम्हें, हम धमकाते हैं तुम्हें, तुम अपने मर्जी से आके साइन करो ना। मगर ये नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है बचपना हमारा यहीं पर गया हुआ है। तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, जब तुमने सोसाइटी मेंबरशिप बनाई है, हमने तुम पे विश्वास किया है कि नहीं, तो तुमने उस विश्वास को क्या किया, इस्तेमाल किया। 30 साल से हम अपने भाई बहन बन के हम चल रहे थे। 30 साल से तुम लोगों ने क्या किया, आखिर में हम लोगों को बेच के खाया ना, और पैसे अपने जेबे भर के चले गए ना। तुम लोगों के 10 फ्लैट रहने थे, मगर हम एक के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारा हक का है, ठीक है। और वो देना ही चाहिए उन्होंने। और वो बोलता है वो इनलीगल है, ये है, वो है, कहां से। जब तुम लोगों के 10 घर लीगल बन सकते हैं, तो एक घर इनलीगल कैसे बन सकता है। सही बात है ना ये। तो तुम लोगों को फैसला ये करना है, तुम क्या कर। हम अभी इतने कोर्ट में गए, यहाँ भाग दौड़ की, वहां तुम हमें डॉक्यूमेंट्स, तुम क्लीन है ना तो सामने टेबल पे रखो ना, जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है सामने रखो, ओपन मीटिंग रखो। बाबा तुम जो मांग रहे हैं ये हमारे पास है, वो क्यों नहीं दे रहे हो, तुम क्यों नहीं दे रहे हो, क्या मसला क्या है। मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है हमें बताने के लिए। तुम सिर्फ ये कर रहे हो, इंसान को घुमा रहे हो, ठीक है, वो ही है। मैं सारा शेख हूँ, मैं लास्ट 37 ईयर्स से यहाँ पर रह रही हूँ। मेरा डैड यहाँ पर 62 से रह रहा है, ठीक है। अभी इतने साल हो गए हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा पूरा बचपन यहाँ पर गया है। और अभी सडनली 2020 में हम लोग को एक नोटिस आया था बिल्डर की तरफ से, प्लॉट मतलब हम लोग का घर खाली करने के लिए।
आफ्टर दैट कितने बार उनको हम लोग ने लेटर भेजा है, प्लीज़ हम लोग को डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। हम लोग मना नहीं कर रहे, हम लोग अपोज नहीं कर रहे प्रोजेक्ट से। हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट है हम लोग को दिखाओ, हम लोग साइन करने के लिए तैयार है। बट तभी से लेके अभी तक ना हम लोग को कमेटी वाले सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास जाते हैं तो उन लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं। बिल्डर भी यहाँ पर आया था, दुष्यंत शाह, यहाँ पर आके उसने बात किया था। वहाँ पर भी 1 घंटा ऑलमोस्ट उसने बात किया था, तभी भी उसने मेंशन किया हमको हमारे प्लॉट में मिलेगा, लेकिन वो सब फेक है। अगर ऐसा है तो उनको बोलो हमको जो भी है डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के लिए हम लोग साइन करने के लिए तैयार हैं। सेकेंडली जो अकोमोडेशन मिल रहा है हम लोग को यहाँ से बाहर हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को हमारे प्लॉट में अकोमोडेशन भी चाहिए, ट्रांजिट कैब एज प्रॉमिस्ड ऑन द एग्रीमेंट 96 एग्रीमेंट। इफ दे आर गोइंग एज पर दैट एग्रीमेंट, वी वांट इट एज पर दैट एग्रीमेंट ओनली। We want our sale building over here on 911 plot. We are talking only about 911 plot, not other plot. It's a private society, a separate society, a separate LOI, a separate annexure has been issued with our society. Okay, ma'am. Thank you. भैया रुको 1 मिनट, खाली पूछ रहा हूँ मैं आपसे कुछ सवाल। आप लोग भंगार वाले हो? कौन हो? भंगार वाले आप लोग। ये कंस्ट्रक्शन जो आप लोग तोड़ रहे हो, घर जिस सबको तोड़ रहे हो, कौन आपको बताया तोड़ने के लिए? नहीं, घर वाला जिसका घर है वो लिया, उससे लिया हम लोग। जिसका घर है उससे हम लोग लिया भंगार। उससे आप लोग भंगार लिए हुए? अच्छा, मतलब अगर कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता कल के दिन अगर ये बिल्डर अगर पलटता है, ठीक है, तो बिल्डर तो बोलेगा कि भाई तुम लोग ने बोला है भंगार वाले को तोड़ने के लिए, है ना? ऐसा है ना? मतलब पूरा इल्ज़ाम आप लोग घर वालों पे डाल रहे हो कि भाई घर वाले ने बोला है तोड़ने। हम लोग घर नहीं, ये प्रोजेक्ट तो एसआरए का है ना? कौन सा हब? हम लोग कैसे नहीं सर, ऐसा है जैसे जो बिल्डिंग प्लानिंग आ गया, हाँ, इसको चेक मिलता है तो जब घर खाली करता है फिर उसके बाद हम लोग को ये भंगार देता है। अच्छा, हम लोग खरीदी करते हैं ये भंगार। हाँ, कितने में लोगे? हम लोग उसको पैसा देके उससे घर ले लेते हैं, फिर तोड़ के हम लोग अपना सामान निकाल लेते हैं। एक घर कितने में लिया आपने? जैसा रहे लोखंड के हिसाब। अभी ये तोड़ रहे हो, अभी आप ये घर कितने में लिया आपने भंगार? हो गया, कम से कम हो गया 6 महीना। नहीं, एक घर आपने एक घर का भंगार लोखंड के हिसाब से 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 घर के हिसाब है। ये मतलब बिल्डर आपको नहीं दिया तोड़ने के लिए, घर वाले दिए? पक्की बात है? तो मतलब घर वाले जवाबदार है इसके। अगर कभी बाई चांस अगर जो है अगर कभी आगे बिल्डर अगर पलटता है तो घर वाले के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आएंगी कि घर वाले दिए तोड़ने के लिए ना? ऐसा है क्या? आपका नाम क्या है भाई? आपका? मोहम्मद आरिफ। आपका? कहाँ रहते भाई आप? इधर ही गणेश मंदिर। भंगार की दुकान क्या है आपकी? गणेश मंदिर। पूरा एड्रेस बताइए किधर है? गणेश मंदिर बता रहा हूँ भाई। गणेश मंदिर पूरे मुंबई में है ना, हजारों गणेश मंदिर। पूरा एड्रेस क्या है? तो गणेश मंदिर एड्रेस सही है, अब और कौन सा एड्रेस? हाँ, क्या? चंद्रबली सिंह चाल। चंद्रबली सिंह चाल। और किधर है चंद्रबली सिंह चाल? ये रुक जा बेटा। चंद्रबली सिंह चाल। हाँ, और शॉप नंबर क्या है? इतना हम लोग भाड़े वाले रहते हैं। अच्छा ठीक है, मोबाइल नंबर बता दो। आप जाओगे, मोबाइल नंबर बता दो आपका भैया। नहीं, मोबाइल नंबर को नहीं देंगे। जो चाहिए आपको, मैं क्या बोलूँ, आपको जो चाहिए बिल्डर से जाके आप बिल्डर से। किससे बिल्डर से? कौन से बिल्डर से? पंपी सेट से। आपको जिससे बात करना आप जाके बिल्डर से बात। पंपी का पूरा नाम क्या है? पंपी सेट हम लोग बोलते हैं। पंपी सेट से बिल्डर से रोहित सर से किसी से आप बात कर लीजिए। ओके भैया। पंपी सर और रोहित सर आप किसी से जाके बात कर लीजिए। ओके। पंपी ठाकुर है ना? हाँ, ठाकुर है। अच्छा, तो अभी आप मतलब आपको पंपी साहब ने और ठाकुर साहब ने भेजा है क्या तोड़ने? हम लोग नहीं भेजा हुआ है। अब हम लोग जब लोखंड नहीं, आप इतना आप डेयरिंग से बोल रहे हो पंपी सेट और ठाकुर सेट, कैसा करना, तो हम लोग को इतना एड्रेस तो मालूम नहीं है। आपको नॉलेज लेना है, आप जाके ऑफिस में लीजिए। हाँ, नहीं, आपकी दुकान का एड्रेस आपको पता नहीं है? आप इतना एड्रेस ले रहे हो तो आप जाके रोहित सर। आप चोरी तो नहीं कर रहे हो ना? चोरी कैसे? चोर तो नहीं हो ना? तो आप बता दो आपकी दुकान का एड्रेस। आपका फोन नंबर नहीं दे रहे हो आप?
हाँ वो नहीं बोले थे। हाँ वही बोला ना, तो अब इससे पहले क्या बोला था? अभी तो बोले घर वाले ने बोला है कि मतलब कहीं ना कहीं झूठ बाती कर रहे हैं। सर ने क्या बोले है, किचन बाथरूम तोड़ने के लिए घर मालिक ने घर का पूरा सौदा करता, पैसा लेता, घर का घर मालिक पैसा लेता है, रोहित थोड़ी लेता ऐसा बात है। घर मालिक पैसा लेता, तुड़वाता, तभी तोड़ते हैं। कोई तो आके किसी के घर में तो घुस के तोड़ेगा नहीं। वो पैसा लिया घर वाला, चला गया, हम लोग ये तोड़ के निकाल लिए, ये अपना सामान बचा था इतना, सोचा मिट्टी कोई तो किसी का घर आके तोड़ेगा नहीं। दब जाएगा तो ये निकाल लेते हैं, चालू करो करके ये सब निकाल लें।